نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ایصال ثواب، مفتی زین العابدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، لیکن مدینے میں میرے نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لارے کرامت پہ، نہیں بولیں گے آپ، کان لارے کرامت پہ، کان لارے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بسم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ تقریباً آج سے 1 سال قبل پہلے محترم عالی جناب مرحوم جابر صاحب کا وصال پرملال ہوا۔ مجھے جب ان کے بیٹوں نے بتایا، کیونکہ جب میں 40ویں کے پروگرام میں چل کر ٹھاکر دوارہ سے یہاں آیا تو راستے میں انہوں نے مجھ کو بتایا کہ حضرت ہمارے والد محترم نے پوری شایان شان اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی کی، کھانے کا انتظام و احترام و انصرام کیا، مہمانوں کی مہمان نوازی کی، لوگوں کی دلجوئی کی۔ ہمارے والد نے اپنی بیٹی کو ودا کیا اور ان کی بیٹی ٹھاکر دوارہ ہی پہنچی تھی، اس سے پہلے کہ ہمارے والد محترم کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ان کو اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے ہم ان کو ٹھاکر دوارہ ہی لے کر پہنچ پائے تھے۔ ان کا وصال پرملال ہوا تو مجھے واقعی بڑا افسوس بھی ہوا، کیونکہ اللہ کی قسم بیٹیوں سے پوچھو کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کس قدر پیار کرتی ہیں۔ آپ کو ہم کو معلوم کیا ہے، جب ایک باپ بچپن سے لے کر جوانی تک بیٹیوں کی پرورش میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، نہ باپ جاڑے کی سرد رات کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کی شدت کو دیکھتا ہے، کبھی وہ کاشی پور جاتا ہے، کبھی وہ مراد آباد جاتا ہے، کبھی وہ دلی جاتا ہے، اور جیسے تیسے کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام و احترام و انصرام کرتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک بیٹی کی بڑی اچھی بات یاد آئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کسی پوچھنے والے نے ایک بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی ذرا یہ بتاؤ، جب تم اپنے باپ کے گھر سے ودا ہو کر اپنی سسرال جاتی ہو تو اس قدر اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں بہاتی ہو؟ تو بیٹی نے کتنا پیارا جواب دیا، نادان تجھ کو معلوم نہیں، آنسو بہانے کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، حالانکہ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرے باپ نے میرے وقت مقررہ پر میرا نکاح کر دیا ہے، کیونکہ سنت مصطفیٰ کو میرے باپ نے زندہ کیا ہے، کیونکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرو، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرتا ہے، بولو کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لڑکا ہو یا لڑکی جب ان کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ان کا ایمان ناقص رہتا ہے، کامل نہیں ہوتا، کیونکہ شادی سے پہلے وہ نکاح کبھی ادھر چلاتا ہے کبھی ادھر چلاتا ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ نیچے جھک جاتی ہے۔ تو شادی ہونا بڑی اچھی بات ہے، لڑکی کو تو فخر ہونا چاہیے، کیونکہ آج جب اس کے باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے یعنی اپنے داماد کے ہاتھ میں تھموایا تو سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا۔ بیٹی کو خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ بیٹی کے معلوم ہو گیا کہ آج میرے باپ کے سر پر جو بوجھ تھا وہ کچھ ہلکا ہوا ہے، بیٹیوں کو فخر حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ملت کے نوجوانوں، لیکن یہی بیٹیاں جب اپنے باپ کو چھوڑ کر جاتی ہیں، اپنی ماں کے پیار کو چھوڑ کر جاتی ہیں، تو فطرت نے بیٹیوں کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے بیٹی یہ تو بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کی نکل رہے ہیں، جبکہ وہ تو بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، وہ تو مثلا تو شادمانی کا وقت ہوتا ہے، وہ تو خوشیوں کا وقت ہوتا ہے، وہ تو سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے اے لوگوں تم کو معلوم نہیں ہے، بات حقیقت ہے کہ میرے باپ نے میری شادی کی ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، لیکن تم کو معلوم نہیں میری آنکھوں سے آنسو کی نکل رہے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے جب میری بدائی ہو رہی تھی تو بھائی نے بھی کپڑے صحیح کر لیے تھے، میرے چاچا نے بھی کپڑے صحیح کر لیے تھے، میرے رشتہ دار کے بھی کپڑے اچھے تھے، میرے احباب کے بھی کپڑے اچھے تھے، میرے ملت دار کے بھی کپڑے اچھے تھے، لیکن میری نظر اچانک اس باپ کے اوپر پڑ گئی ہے جو کبھی اس کرسی کو اٹھا کر ادھر جمع کر رہا ہے، جو کبھی اس کرسی کو اٹھا کر جگہ جمع کر رہا ہے۔ میں نے اپنے باپ کے کپڑوں کو دیکھا ہے، اس کی آستین بھی سری ہوئی ہے، اس کا دامن بھی تال میں سرا ہوا ہے۔ آج مجھ کو اپنے باپ کا پیار یاد آ گیا ہے، جس کی وجہ
से आंसू नहीं रुक रहे हैं मिल्लत के नौजवानों। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, हे लोगों, बेटियों को गिरी निगाह के साथ मत देखा करो। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में जितनी बेटियां होती है उस घर में उतने रहमत के दरिया जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इसाले सवाब, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार फरमाते हैं, जिस घर में जितनी बेटियां होती हैं उस घर में उतने रहमत के दरिया जारी होते हैं। पता है, बेटी जब देखती मेरा बाप कभी ये कुर्सी उठाकर उधर रख रहा है, कभी ये सामान उठाकर इधर रख रहा है, मेरे बाप ने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की, मेरे बाप ने अपने लिबास की परवाह नहीं की, मेरे बाप ने अपनी पोजीशन की परवाह नहीं की। आज वो बाप फटे कपड़े वाले पुराने कपड़े में है, सब लोग मौज मस्ती में हैं, लेकिन मेरा बाप दीवार से खड़े होकर एक सुतून से टेक लगाकर अपनी आंखों से आंसू निकल रहा है। मिल्लत के नौजवानों, जब उसी बेटी को पता चला होगा कि थोड़ी देर के बाद मेरे बाप का विसाले पर बलाल हो गया होगा, तो उस बेटी से पूछो कि बाप के सीने पर क्या सदमा पहुंचा होगा। अल्लाह की कसम, बेटियां अपने माँ बाप से जितना प्यार करती हैं उतना प्यार बेटे अपने माँ बाप से नहीं करते हैं। मिल्लत के नौजवानों, आका करीम के प्यारे दीवानों, तारीख माता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़माने जाहिलियत का एक नौजवान आता है, आने के बाद अर्ज़ करता है, मुस्तफा मुझको ज़माने जाहिलियत की दो बातें याद हैं, लेकिन जब मैं उन दो बातों में एक बात को याद करता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती है, और दूसरी बात को याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। बात समझ आ रही है आपके? आ रही कि नहीं आ रही है? तो तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। वो नौजवान नबी की बारगाह में आता है, आने के बाद अर्ज़ करता है, मुस्तफा ज़माने जाहिलियत का दस्तूर था कि लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर देते, समझ रहे? और ज़माने जाहिलियत का ये दस्तूर था कि लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की पूजा करते। नबी की बारगाह में वो नौजवान सकता है, मुस्तफा दो बातों में मुझे जब एक बात याद आती है तो मेरी हंसी नहीं रुकती, और दूसरी बात याद आती है तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। बड़ी तवज्जो के साथ आप मेरी बात को सुनते चलिएगा। मिल्लत के नौजवानों, वो पहले कौन सी बात जब उसको याद आती है तो उसकी हंसी नहीं रुकती? वो नौजवान कहता है, मुस्तफा ज़माने जाहिलियत का दस्तूर है कि लोग मौसम के एतबार से खुदा की पूजा करते थे। जाड़ों का खुदा अलग, गर्मियों का खुदा अलग, सफर का खुदा अलग और हज़र का खुदा अलग, यानी अपने मौसम के पास उन्होंने खुदा को चेंज कर दिया, बदल दिया। वो नौजवान कहता है, मुस्तफा एक दफा की बात है, ज़माने जाहिलियत में मैं किसी काम की वजह से अपने घर से बाहर निकला। मैंने सोचा कि इतने लंबे सफर में मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कि मुझको मेरा खुदा कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक काम क्यों ना करूँ कि मैं घर से ही खुदा का इंतजाम करके चलूँ। वो नौजवान कहता, हुजूर मैंने पत्थर लिया और पत्थर लेने के बाद मैंने उस पत्थर को अपने थैले में रखा, तो पत्थर का वजन बहुत ज्यादा था, तो जब मैंने थैले को उठाया तो मैंने सोचा कि ये खुदा तो काम नहीं चलेगा कि इसमें तो वजन ज्यादा है। वो नौजवान कहता है, हुजूर मैंने काम किया कि मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने आटा लिया जिसको अरबी में बोलते तीन माने आटा। वो नौजवान कहता है कि मैंने आटे के नन्हे मुन्ने खुदा बनाए। समझना, जो आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे कार्टून बनाते हैं, आटे के नहीं बनाते, मट्टी के कार्टून बनाते हैं, आटे के कार्टून नहीं बनाते। अल्लाह अकबर, तारीख में आता है कि आका की आमद से पहले कि जिन कार्टूनों को बच्चे बनाकर तोड़ और फोड़ देते हैं, ज़माने जाहिलियत में लोग उसकी पूजा करते थे। अल्लाह अकबर, वो नौजवान कहता है, हुजूर मैंने आटा लिया और आटे के नन्हे मुन्ने खुदा बनाए, और खुदा बनाकर मैं सफर के घर से अपने घर से बाहर निकला। अल्लाह अकबर, वो नौजवान कहता है कि मैं आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि उस जगह उस मकाम पर पहुंच गया कि जहाँ पर दूर दूर तक मुझको कोई आबादी नजर नहीं आई, कोई मकान नजर नहीं आया। मैंने सोचा कि यहाँ पर खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, एक काम क्यों ना करूं कि मैं अपने खुदा को ही अपनी ग़िज़ा क्यों ना बना लूं। क्या कहा कि अपने खुदा को अपनी ग़िज़ा क्यों ना बना लो। नौजवान कहता, हुजूर मैंने अपने थैले में हाथ डाला, और थैले में हाथ डालने के बाद अपना वो खुदा के जो मैं इबादत के लिए लेकर आया था, मैंने उसको पत्थर पे रखा, और पत्थर पे रखने के बाद उसको मैंने पीस लिया और उसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैं रोटी बनाकर उसको खा गया। मुस्तफा, आज इस्लाम लाने के बाद मुझको जब ये बात याद आती है तो मेरी हंसी नहीं रुकती है कि आपकी आमद से पहले मैं ऐसे खुदा की पूजा करता था जो अपने पुजारी से अपने तशक्कुस को न बचा सकता हो। इतनी बात जब मेरे नबी ने सुनी तो सरकार भी मुस्कुराने लगते हैं। आप भी मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह, मैं सुनाता हूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, जिसकी
है। हुजूर दूसरी बात ये है कि ज़माने जाहिलियत का दस्तूर था कि लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है हुजूर एक दफा की बात है, मेरी बीवी की साथ है, बयान फरमाती है कि मैं एक दफा किसी काम के घर से निकला, इस हाल में कि मेरी बीवी हमल की हालत से थी, तो मैंने अपनी बीवी को वसीयत और नसीहत दोनों की। ये मेरी बीवी, मेरी वसीयत और नसीहत ये है, नसीहत ये है कि अगर लड़का पैदा हो, क्या लड़का पैदा हो, लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छे से परवरिश करना, और अगर लड़की पैदा हो तो पत्थर से सर कुचल के जिंदा उसको मार देना। ये वसीयत करके वो नौजवान सफर करने के लिए गया। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है कि मैं अपने घर से निकल गया। अब वो जब अपने घर से बाहर निकला, काफी दिनों के बाद उस नौजवान का घर में आना हुआ, तो तारिक माता इत्तेफाक की बात ये है कि उस नौजवान के घर में बजाय लड़के के इस मर्तबा लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा, समझ में आई बात? लड़के के बजाय क्या पैदा हुई? लड़की पैदा हुई। लड़के के बजाय लड़की पैदा हुई। अल्लाह अकबर। आज लड़कियों को लोग, जो पहले दौर था, कुछ लोगों का ज़हन आज भी उन्हीं की तरह हो गया है, लेकिन बड़ी तवज्जो के साथ आप सुनते चलिएगा। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है, वो नौजवान कहता है जब मैं अपने काम काज से फारिग हुआ तो कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर में दाखिल हुआ। मेरी बच्ची कुछ होशियार हो गई थी, चलने के लायक हो गई थी। मेरी बच्ची बार बार अपनी माँ से कहती थी अम्मा जान मैंने तेरा चेहरा तो देख लिया है, लेकिन मुझे अपने उस बाप का चेहरा तो दिखा दे कि जिस बाप के नुतफे से तूने मुझको पैदा किया, मेरा बाप कहाँ चला गया है? क्योंकि उस बाप को आए हुए काफी टाइम हो गया था। बेटियों की फितरत में शामिल होता है, अगर बाप काफी दिनों के लिए घर से बाहर चला जाए तो बेटियां परेशान हो जाती है। मिल्लत के नौजवानों, वो नौजवान नबी की बारगाह में अर्ज़ करता है मुस्तफा, काफी दिनों के बाद जब मैं अपने घर में आया, मेरे दरवाजे को दस्तक दी तो अंदर से आवाज आती है। बीबी पूछती है मन अंता, कौन है आप, कौन है आप? तो नौजवान कहता है हुजूर मैंने कहा अना सौजुका, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। आप ईमानदारी से बताइए, बीबी शौहर के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी तो और किसके लिए दरवाजा खोलेगी? बीबी ने दरवाजा खोल दिया। वही बच्ची जो एक मुद्दत से अपने बाप की आमद का इंतजार कर रही थी, जब उस बच्ची को पता चला कि मेरे बाप की आमद हो गई है, बच्ची एकदम अपने बाप के कदमों में गिर जाती है और गिरने के बाद अपने बाप से कहती है या बता ये मेरे अब्बा, आप इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? आपके खातिर में बेकरार थी, आपकी वजह से मैं बेचैन थी। अब्बा आप मुझको आज के बाद छोड़कर कहीं दूर दराज नहीं जाना है। अल्लाह की कसम तारीख में आता है, वो नौजवान नबी की बारगाह करता है मुस्तफा, जैसे ही मेरी नजर बच्ची के ऊपर पड़ी, मेरी आंखों में शरारत के आंसू आ गए, मैं गज़बनाक हो गया। मैंने बीवी से कहा बीवी ये तूने क्या किया है? आस्तीन का सांप पाल लिया है। मैं तो तुझसे कह कर गया था अगर लड़का जन्म दे तो उसकी परवरिश अच्छे से करना, और लड़की का जन्म दे तो उसका सर पत्थर से कुचल देना। ए मेरी बीवी ये तूने काम क्यों नहीं किया है? बीवी ने कहा है मेरे शौहर ये काम हरगिज़ मुझसे नहीं हो सकता है, क्योंकि औलाद की कदर उस माँ से पूछो जिस माँ ने 9.5 महीने अपने पेट में अपनी बच्ची को जन्म दिया हो और उसके बाद जन्म दिया हो। मिल्लत के नौजवानों, माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा होता है। इनका एहसास इनके रुखसत होने के बाद होता है। बाप का एहसास तब होता है जब अब्बा अब्बा कहने वाला कोई बाप नहीं होता है। माँ का एहसास तब होता है जब अम्मा अम्मा कहने वाली कोई माँ नहीं होती है। भाई का एहसास तब होता है जब भैया भैया कहने वाला कोई भाई नहीं होता है। हर चीज का एहसास उसके रुखसत होने के बाद होता है। वो नौजवान कहता है हुजूर मेरी आंखों में शरारत के आंसू आ गए, मैं गज़बनाक हो गया। मैंने अपनी बीवी से कहा हे मेरी बीवी तूने इस बच्ची को मार क्यों नहीं दिया, इसका सर पत्थर से क्यों नहीं कुचल दिया? अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद अब मैं अपनी बच्ची को बयाबान जंगल की तरफ लेकर चलने लगता हूँ। बात समझ आ रही है आपके? क्या कहा कि मैं अपनी बच्ची को बयाबान जंगल की तरफ लेकर चलने लगता हूँ। अब बच्ची अपने बाप पे हाथ को पकड़कर बड़ी मसरत और शादमानी के साथ चल रही है, क्योंकि बच्ची को तो ये मालूम है कि ये हाथ किसी गैर का नहीं, ये हाथ मेरे बाप का हाथ है। आपको मालूम है अगर बहन 20 साल की हो और भाई 5 साल का हो और बहन के हाथ में 5 साल भाई का हाथ हो तो बहन बेफिक्र होकर जाती है, क्योंकि भाई बहन को मालूम होता है कि मेरे हाथ में ऐसी ताकत का हाथ है कि कोई भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। और जिसके हाथ में बाप का हाथ हो तो वो बहन वो बेटी कितनी बेफिक्र हुआ करती है। मिल्लत के नौजवानों, बेटी ने सोचा कि मैं तो अपने बाप के साथ जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। वो बेटी अपने बाप का हाथ पकड़ के चलने लगती है। बेटी कहती है अब्बा क्या मुझको चॉकलेट लेने के लिए लेकर जा रहे हो? अब्बा क्या आप मुझको खरीदो फरोख्त कराने के लिए लेकर जा रहे हो? अब्बा